Thank you, Nanda Minasa. Jai Jinendra. Every individual dreams of success, but the real question is, what is the ideal path to achieve it? Today's session will help us to discover that path through the wisdom and a spiritual guidance. Jai Jinendra, good morning to everyone present here. Respected Sadhvi Shri Divya Purnaji Maharaja, Sadhvi Shri Shashwat Purnaji Maharaja, Honorable Director, respected HODs of the department, esteemed teachers and my dear friends. I am Siddhi, feel extremely honored and delighted to welcome you all to this special and inspiring session. Today's session is based on the very meaningful topic, ideal pathway to the success. Success in a life is not just about the achievement, but also about the values, discipline, and the right direction. We are truly fortunate to have a spiritual guide who will help us to understand the true pathway to the success. With a great respect and devotion, I would like to extend a warm and heartfelt welcome to respected Sadhvi Shri Divya Purnaji Maharaja, Shri Shashwat Purnaji Maharaja. Your presence today is truly blessing for all of us. I also extend my sincere welcome to our Honorable Director, the Head of Departments and all the dignitaries present here. Thank you for gracing this session with your valuable presence. Before we begin this enlightening session, let us purify our minds and surroundings by chanting the sacred Navkar mantra. I request everyone to join their hands. Thank you. It is my great privilege to introduce our respected speaker for today, Sadhvi Shri Shashwat Purnaji Maharaja. Sadhvi is from Mumbai and completed 27 years of Diksha, dedicating her life to her spirituality, knowledge and the service to society. She possesses a deep knowledge of the six philosophies and the Jain agams, reflecting her proud understanding of Jain teaching and a spiritual wisdom. Sadhviji also has special expertise in the ancient Brahmi script, contributing to the preservation of our rich spiritual heritage. In addition, she is widely recognized for her guidance in a personality development, inspiring many individuals to lead a disciplined, ethical, and a successful life. Today on the topic, the ideal pathway to the success. We are truly fortunate to receive her valuable guidance and the blessings. I now humbly request respected Sadhvi Shri Shashwat Purnaji Maharaja to kindly enlighten us with her inspiring thoughts. Thank you. नहीं मैं करूँगी आगे ना जरा hello can you hear me I think volume should volume कर दीजिए please okay I think आवाज हेलो आवाज आ रही है पीछे
Last straw. LLB. What is the full form of LLB? Leader of the last bench. आवाज आ रही है? Thank you, thank you. मुझे लगता है और थोड़ा रिफाइन हो सकती है आवाज. हमिंग हो रहा है, इसीलिए क्या हमिंग हो रहा है बेटा? ओके, ठीक है, जैसी भी है मेरी ठीक है, ओके फाइन फाइन फाइन, पर आवाज थोड़ी सी आपको ठीक करनी पड़ेगी फिर भी. ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदो, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरो कृपा, मोक्षमूलं गुरु कृपा. आई थिंक अब समझ आ गई होगी क्या प्रॉब्लम है. फाइन, वेरी गुड. अभी आप लोग सब जब अंदर आए और आपको सब्जेक्ट पता था कि मैं किस पे बोलने वाली हूँ, सही है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस? एनीवन? Raise your hands, please. Anyone? What is the meaning of success? सफलता. सफलता के मायने आपके लिए है दिस काइंड ऑफ जो आपके दिमाग में है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली द सक्सेस. सफलता, इट्स अचीवमेंट. यू कंसीडर सक्सेस एज अ अचीवमेंट, योर अचीवमेंट एज अ सक्सेस. विच सेंटेंस इज राइट? अचीवमेंट इज अ सक्सेस और सक्सेस इज अचीवमेंट. Then still the question still there, what is success? सफलता क्या है? मैंने हिंदी में लिखा, not in English, because being a graphologist मुझे पता है कौन सा अक्षर ज्यादा फायदा करता है. फल का मतलब क्या है? Fruit. And what is the fruit? Accomplishment of tree. जहां से फिर नई यात्रा शुरू होती है, बीज होता है, and बीज से यात्रा प्रारंभ होती है. द लास्ट स्टॉप इज फ्रूट. सक्सेस में कहीं फ्रूट नहीं है, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा सफलता. समझ आ रही है? आई थिंक नाउ यू कैन गेस व्हाट इज सक्सेस. अकम्प्लिशमेंट, नॉट अचीवमेंट. इसलिए मैंने हिंदी में लिखा सफलता. जहां फल है, फ्रूट इज अ कंप्लीसमेंट ऑफ ट्री. ट्री की जो जर्नी है, जो सीड से शुरू होती है, बीज से शुरू होती है, स्प्राउट होता है, थोड़ा सा छोटा पौधा बड़ा होता है, फिर उस पे पत्ते आते हैं, फूल आता है, और फूल में से वो कन्वर्ट होता है फ्रूट में, और फ्रूट क्या कर जनरेट करता है? सीड. वहां से वापस जर्नी शुरू होती है. तो फ्रूट इज अ कंप्लीशमेंट. सफलता का मतलब अचीवमेंट नहीं होता है, जो आप लोगों को सबको सुनाया जाता है. एकेडमिक्स में आए तब से कुछ बनना है, कुछ करना है, कहीं पहुंचना है, कुछ भी जीतना है, और इसीलिए अचीवमेंट को आप लोगों ने सफलता मान लिया, सक्सेस मान लिया. सफलता, इट मीन्स अकम्प्लिशमेंट. अकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है पूर्णाहुति, पूर्णता, अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन. नॉट टू बी सेटिस्फाइड, but the feeling of satisfaction. I have the key difference between these two.
वंस मैंने एक जगह पे पढ़ा था, मैं एक बुक पढ़ रही थी, तो उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा था सेटिस्फैक्शन इज डेथ, एंड आई रियली अप्रिशिएट, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट था. यू कैंट बी सेटिस्फाइड बट यू मस्ट हैव अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन. समझ में आ रहा है? कॉम्प्लिकेटेड है समझना. व्हेन यू आर सेटिस्फाइड यू आर डेड. क्योंकि सेटिस्फैक्शन के सेटिस्फाइड का मतलब होता है वो आगे ग्रोथ नहीं है. यू आर डन कंप्लीटली, जस्ट हो गया, खत्म. सही है, डिग्री खत्म हो गई, हो गया खत्म. शादी हो गई, हो गया खत्म. जो चाहिए थी वो लड़की मिल गई, हो गया खत्म. बच्चा हो गया खत्म. बूढ़े हो गए, बच्चे की शादी हो गई, हो गया खत्म. देन व्हाट इज द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन? बस मैं यहाँ इसी की बात करूंगी. द पाथवे टू सक्सेस का मतलब होता है द पाथवे टू फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, एंड दैट इज ओनली सक्सेस इज accomplishment. What is the feeling of accomplishment? यहाँ हम उसी की बात करेंगे. Let me tell you a single story of a boy. छोटी सी है, शायद आप पे मुझसे रिलेट करती होगी. एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, एवरेज लाइफ, एवरेज पेरेंट्स. पेरेंट भी बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं थे. सिंपल सोसाइटी फियर के साथ, समाज क्या कहेगा उसके बीच बचपन से बच्चा बड़ा होता गया. हर चीज में एडजस्ट करना था, बिकॉज एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली के लिए एडजस्टमेंट इज द, आई थिंक, सेकेंड नेम ऑफ लाइफ. एवरीवेयर, हर जगह कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट के साथ वो आगे बढ़ता चला गया. स्कूल में भी एवरेज ही रहा, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे परसेंटेज नहीं थे. पढ़ाई में भी कुछ धीरे धीरे आया कि कुछ करना है, क्योंकि सब कुछ कहीं ना कहीं जा रहे हैं, सब कुछ ना कुछ बन रहे हैं, मुझे भी कुछ बनना है. अब कुछ तो बनना था, बट क्या ये पता नहीं था उसे. अब वो कुछ बनने में उसने सोचा चलो सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम भी इंजीनियर कर लेते हैं, इंजीनियर बन जाएंगे, कुछ अच्छी जिंदगी मिल जाएगी, लाइफ हो जाएगी, मतलब अच्छी जॉब मिल जाएगी, ऑफिस में बैठ के काम करेंगे, हैंडसम मनी हाथ में होगा, देन भी हैंडसमली हम पे करेंगे, लाइफ लाविश होगी. सपने देखना शुरू हुआ, बट पढ़ाई में उतना फोकस नहीं था. सपने तो आए, क्योंकि आएंगे, वो एज है जो सपने दिखाती है. तो फाइनली कुछ करना था, बट पेरेंट्स, समाज, रीति रिवाज, सोसाइटी, इन सब में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिससे फ्रस्ट्रेशन था. कुछ चीजें पसंद नहीं थी, फिर भी करनी पड़ती थी. पेरेंट्स से गुस्सा होता था, हर चीज में कहीं ना कहीं छोटे छोटे इनकाउंटर्स होते थे पेरेंट्स के साथ. मैं इनकाउंटर वर्ड यूज कर रही हूँ. पेरेंट्स के साथ इनकाउंटर ही होता है, और हमेशा इनकाउंटर में पेरेंट्स ही मरते हैं, या कभी आप मरते हो. और फिर धीरे धीरे ऐसे ही करते करते एवरेज परसेंटेज के साथ कॉलेज में आए. गुस्से में कहीं कहीं एटीट्यूड डेवलप होना, एटीट्यूड तो नहीं पर ईगो डेवलप हो गया, दिखाना शुरू हो गया कि आई एम सुपीरियर देन यू. पेरेंट्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, फ्रेंड्स अच्छे लगते थे, क्योंकि पेरेंट्स सारा दिन रोकते टोकते रखते थे उस बच्चे को. फ्रेंड्स रोकते टोकते तो नहीं थे, बट धोखा जरूर देते थे. बट फिर भी पेरेंट्स से बेटर थे, कम से कम रोक टोक तो नहीं थी. तो ऐसे धोखेबाज दोस्तों के साथ भी ठीक है, टाइम पास स्पेंड कर लेता था वो. कुछ अच्छे दोस्त थे भी थे, लेकिन दिखावे के चक्कर में, अपने फॉल्स ईगो के चक्कर में कहीं ना कहीं उसने उन दोस्तों को भी खोया. बट ठीक है, इट्स गॉन, लाइफ है, चलता है. गालिब ने कहा ना, तुम नहीं कोई और सही और नहीं कोई और सही. बस इसी रूल से वो चलता जाए, तुम नहीं कोई और सही और नहीं कोई और सही, कोई ना कोई तो मिल जाएगा, जिंदगी बहुत लंबी पड़ी है. उसने कॉलेज में एंट्री की, इंजीनियरिंग बनना था, इंजीनियरिंग को ठीक ठाक कॉलेज भी मिल गई, स्टार्ट भी हो गया करियर उसका. बट जैसा स्कूल में सपने देखे थे वैसी कॉलेज थी नहीं. सही है ना? एम आई राइट? जो इमेजिनरी पिक्चर स्कूल का था, कॉलेज में आके वैसा कुछ भी नहीं मिला. लेकिन फिर भी कुछ शायद मिल जाए, नहीं तो वी विल क्रिएट उस डॉस के साथ वो भी जो आपकी तरह ही बढ़ता चला गया. फाइनली लड़का था तो गर्लफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में फिजिकल डिजायर्स उसको करने लगी. स्टडीज थोड़ी सी कहीं ना कहीं सेकेंडरी जाने लगी. बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, मैश का खाना अच्छा नहीं लगता है, बाहर की बुरी आदतें लग गई खाने पीने की,
चाहिए, स्वाद चाहिए, समथिंग न्यू ट्राई करना था एवरी डे, और उसमें बहुत सारी गलत आदतें भी लग गई। टू ट्राई समथिंग न्यू, लाइफ में कोई एंथुजियाज्म खत्म हो गया था, थ्रिल चाहिए, एडवेंचर चाहिए, एंड फाइनली वैसे ही वो चलता चला गया। पास भी हो गया, नहीं ऐसा नहीं कि फेल हुआ, इतना बुरा नहीं था वो, बट एवरेज परसेंटेज के साथ, एवरेज करियर के साथ, फिर हर जगह एडजस्टमेंट करा, जिस लड़की को पसंद करता था वो नहीं मिली, अरेंज मैरिज करनी पड़ी, उसमें भी एडजस्टमेंट हुआ, और पूरी लाइफ एडजस्टमेंट में चलती चली गई। करियर मतलब ठीक था। फाइनल एक दिन इन द एज ऑफ 40 वो देख के सोच रहा था, क्या मैं रास्ता बदल सकता था, क्या मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता था, क्या वो बना सकता था, कैसे, शुरुआत कहाँ से करता वो? कॉलेज में आने के बाद, स्कूल से, घर से, फ्रेंड्स के साथ, कहाँ से, या अपने बुक्स के साथ? आप सबके दिमाग में कॉलेज में आने के बाद करियर पे फोकस करता तो जिंदगी अच्छी होती है। सबसे बड़ी मिथ है कि अगर आपके ग्रेड्स अच्छे होंगे तो आप लाइफ सक्सेसफुल बना सकेंगे, ये मिथ है। आपको अच्छा इंसान बनना होगा, तब आप सक्सेसफुल लाइफ जी पाएंगे। अच्छा इंसान का मतलब क्या है? दूसरों से धोखा खाते रहना? अच्छा इंसान का मतलब क्या है? कोई जोर से बोले तो अपने आप को दबा के चुप बैठ जाना? अच्छा इंसान का मतलब क्या है? सक्सेसफुल इंसान ही अच्छा इंसान होता है, और अच्छा इंसान ही सक्सेसफुल होता है। अब यहाँ पे जो रास्ता है, शुरुआत करते हैं। पहली चीज जो उसने गलत आदत डेवलप की, एंड दैट वाज एंगर, फ्रस्ट्रेशन। जिन चीजों को वो बदल नहीं सकता था, उस चीजों के प्रति नफरत थी अंदर। एम आई राइट? रीति रिवाज, समाज, पेरेंट्स, उनकी रोक टोक, रेगुलेशंस, रूल्स, इन सब के प्रति अंदर जो गुस्सा था ना, वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, वो उसकी सबसे पहली गलती थी। That is your anger. But I will say like anger सिर्फ एंगर नहीं होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है, अग्रेशन भी होता है, और सप्रेशन भी होता है। कभी कभी आप सप्रेस्ड होते हो तो इरिटेट होते हो। इरिटेशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ एंगर। कभी कभी आपको कुछ चीजें हैं, चिल्लाने का मन करता है, क्यों? घुटन होती है ना, बहुत कुछ बोलना है लेकिन बोल नहीं पाते हैं, सही है? कैसे रिलीज करोगे? फ्रस्ट्रेशन में। मैं ये नहीं कहती गुस्सा मत करो, मैं ये नहीं कहती फ्रस्ट्रेट नहीं करो, मैं यहाँ ये टेक्निक सिखाने आई हूँ कि कैसे अपना गुस्सा बाहर निकालो। लोग आपको सबको ये कहते होंगे कि गुस्सा मत करो, मैं कहती हूँ बिंदास गुस्सा करो, बस गुस्सा करने का तरीका ढूंढ लो उतना अच्छा कि आपका गुस्सा गुस्सा ना लगे, सामने वाले को चाटा तो लगे लेकिन आपको हाथ न उठाना पड़े। हर कोई यूथ को कहता है गुस्सा मत करो यार, वी आर फायर, हम कैसे गुस्सा ना करें? पता है आग जलाती है, राइट है, पर उसी आग से खाना भी तो बनता है ना। तो हमें बस उस आग, अपने गुस्सा, अपने फ्रस्ट्रेशन के अंदर को यूज करना है खुद पे काम करने के लिए। खुद पे काम करना है। अपने गुस्से को रिलीज करने के लिए कैसे काम करोगे? अच्छा, मैं एक सवाल पूछूंगी। किसी ने, ये बहुत थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी होगा शायद, पर कोई अपने सिर पे ना उड़े, जैसे मैं जैन साध्वी हूं, बीइंग अ जैन साध्वी, मेरी जात, मेरी साधु जीवन की लाइफ और प्योरिटी पे किसी ने मजाक की, अब मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए? Anyone give me a techniques please? आप कैसी साध्वी हैं जो जूता पहनती है? चलो, जैन साध्वीज आर नॉट अलाउड टू वेयर शूज। ये कमेंट हुए, मुझे कैसे जवाब देना चाहिए? प्लीज गाइड मी। रोज आप इन सब चीजों से गुजरते हो और आप फिर भी आपको नहीं पता आपको जवाब क्या देना है।
क्या जवाब दोगे आप? मेरी जगह होगे तो कैसे रिएक्ट करोगे? गुस्सा आएगा। क्या जवाब दोगे? मेरी मर्जी, मैं पहनूं, तुम कौन होते हो बोलने वाले? आई थिंक 90% तो यही जवाब था दिमाग में। एम आई राइट? मैं क्या जवाब देती? यार अभी तो आज adidas पहना है, तुम्हारी मर्जी होगी तो 2 लाख के भी पहनेंगे, बस तुम कृपा कर दो। मेरे जूते से तकलीफ है ना, तो मेरे छोटे से जूते से तकलीफ है, मैं बड़ा तुम्हारे सामने रख दूंगी। परेशानी तुमको है, मुझको नहीं है, तो व्हाई शुड आई बॉदर? मेरे जूते से परेशानी किसको थी? तो मैं क्यों परेशान हूं? वो परेशान है, मैं उसको और ज्यादा परेशान करूं? मेरे 5,000 के जूते हैं, मैं उसके सामने 5 लाख के जूते की ऑफर रख दूं, यार तेरी कृपा कर दिए 5 लाख के जूते लाके दे दे। समझ में आया? हाउ टू डील विथ योर एंगर। एंगर आपके इंटेलिजेंस को खत्म करता है। If there is a problem in a last row, is there a problem in a last row? I am here. Travel around more than 800 kilometers just for you. If you're not giving me attention, then you can go. This is how I'm reacting. मेरा गुस्सा. Because I'm not respecting you, I'm respecting myself. So, if you want your anger in your control, respect yourself. You're not respecting yourself enough. Because everything is there in your mind is something else, someone else. किसी और की कॉपी करते हो, किसी और को देख के उसके जैसा बनना चाहते हो, लेकिन तुम वो नहीं बनना चाहते हो जो तुम हो। और तुमको तुम कौन हो वो समझ में नहीं आता। That's it's okay. लेकिन तुम हो, that's enough. ये आपके दिमाग में है क्या कि तुम हो? Let me ask you one और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। दुनिया में तुम्हारे जैसा दूसरा कोई बंदा है? सेम फेस, सेम नेचर, सेम टैलेंट के साथ है कोई? आपकी कॉपी? यू आर यूनिक ना, तो कम से कम अपनी यूनिकनेस को तो रिस्पेक्ट करो। आपके जैसा, हाँ मैं ये नहीं कहती एरोगेंट बनो। रिस्पेक्ट का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। आपके ईगो को कंट्रोल करना है तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट है, जैसा भी है वैसा मैं हूं और कोई नहीं। बस इतनी समझ आप में होनी चाहिए। आप कोई और है, किसी और के जूते देख के आपको अपने फटे जूते बुरे लगते हैं, किसी और की अच्छी पेन देख के आपकी 2 रुपए की पेन बुरी लगती है, किसी और की अच्छी बैग या मोबाइल देख के आपको अपना आप इंफीरियर फील करते हो। एम आई राइट? पर वो तुम नहीं हो। जो तुम हो तुम रहो। कुछ और बनने की कोशिश में अपने आप को मत खो दो। आप रोज अपने आप को खोते हो, इसलिए यू कांट कंट्रोल योर एंगर। जानना चाहते हुए आपको गुस्सा आता है और उसके बाद क्या होता है? गिल्ट, रिग्रेट। बोल देने के बाद क्या सामने वाला एक बोलने के बाद चुप रहेगा? एक हाथ उठाने के बाद सामने वाला नहीं उठाएगा क्या दूसरा हाथ? कितना करोगे? उसने 1 चांटा मारा, आपने 2 मारा, उसने 4 मारा, फिर क्या मैथमेटिक का गिनती करते जाओ, इनफाइनाइट है। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसा आपका एक्शन होगा सामने रिएक्शन वैसा ही होने वाला है। तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि वेदर इट इज अ रिएक्शन और एक्शन। सामने वाले का रिएक्शन है, एक्शन है, आपको समझ में नहीं आता है। यू आर रिएक्टिंग और एक्शन, आपका खुद का रिएक्शन है, आपका एक्शन है, ये भी आपको समझ में नहीं आता, जिस कारण से आप ईगो के उस जाल में फंसे हो, एंगर के उस जाल में फंसे हो, जहां आपकी बुद्धि, आपका इंटेलिजेंस खत्म हो रहा है। द फर्स्ट उस बच्चे की गलती थी व्हाट? एंगर। मैं कभी नहीं कहूंगी कि एंगर को कंट्रोल करो, बस उसको रिलीज करने की टेक्निक सीखो। तुरंत रिएक्ट मत करो। किसी ने कुछ बोला है ना, थोड़ा सा शांति से सोचो। यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ सकता है, ठंडा हो सकता है प्लीज।
शांति से। गुस्सा निकालने का तरीका होता है, गुस्सा दबाओगे तो खुद को जला लोगे, पर गुस्सा निकालना है तो तरीका सीखो। डोंट कंट्रोल योर एंगर बट मैन्युपुलेट योर एंगर। मैं मैनिपुलेट शब्द यूज कर रही हूँ और बहुत वाइजली यूज कर रही हूँ। मैनिपुलेशन क्या होता है? मैनिपुलेशन क्या होता है? जो चीज जैसी होती है उसको वैसे नहीं पर कुछ और वे में रिप्रेजेंट करना, वो होता है मैनिपुलेशन। एंगर जैसा है वैसा क्यों रिप्रेजेंट करो? शिट है ना, शिट को ऐसे ही रैप करोगे क्या? उसको किसी को प्रेजेंट करनी है शिट तो कैसे करोगे? खुली या अच्छा गिफ्ट बॉक्स लाओगे, गिफ्ट बॉक्स लाओगे। एंगर इज लाइक अ शिट। किसी को डिलीवर करनी हो तो अच्छा वाला लगेगा बॉक्स, सही है ना? Am I right or wrong? आज तक आप लोगों ने एंगर को जैसा है वैसा ही प्रेजेंट किया है। डोंट डू दैट। और लाइफ लॉन्ग यही मिस्टेक करते आओगे। अगर आज आप नहीं सीखे अपने एंगर को अच्छे से प्रेजेंट करना, तो जिंदगी भर ये गलती करते चले जाओगे। कुछ नहीं आपका होना है एवरी टाइम, क्योंकि आपके ऊपर आपका एंगर हावी होना है, आप नहीं। जब भी गुस्सा आए, मैं ये नहीं कहूंगी काउंट करो, ये करो, वो करो, डोंट डू दिस। जब भी एंगर आए ना, तो खुद को ये सीखो कि अब सामने वाले को ये मेरा एंगर प्रेजेंट कैसे करूं। इसके लिए 24 आवर्स आपको काम करना होगा, आपको सोचना होगा, टेक्निक सोचनी होगी। I'll share you my एक लाइफ का इंसिडेंस। वी हैव बीइंग अ जैन साध्वी, हम लोगों ने बहुत सारे रिवॉल्यूशंस किए हैं। आई हैव हैड 2 pets विद अस एंड वो लोग 14 साल हमारे साथ रहे। तो इट वाज वी आर द फर्स्ट जैन साध्वी टू हैव अ पेट्स। वी रेस्क्यूड देम एंड इट्स काइंड ऑफ लॉन्ग स्टोरी है। तो एक बंदे ने मुझे ये बोला कि मुझे नहीं, धन महाराज जी दिव्य पुणासी जी को बोला, शी इज माई एल्डर सिस्टर, कि अरे वाह, ऐसी कैसी साध्वी है जो कुत्ते लेके घूमती है। आपको किसी ने बोला होता तो क्या करोगे? गुस्सा तो मुझे भी आया था, इनको भी आया था। उनका जवाब था, आप जैसे श्रावक की कृपा रही तो हाथी लेकर भी घूमेंगे। ये हमारा गुस्सा हमने उसको बहुत अच्छे बॉक्स में पैक करके दे दिया, उधार नहीं रखा। हमारे यहाँ उधार नहीं चलता। गुस्से में उधार मत रखो, बट शिट को खुला मुंह पे मत मारो। अच्छा गिफ्ट बॉक्स करो और प्रेजेंट करो कि सामने वाला एक्सेप्ट कर ले। समझ में आ रहा है? सो यू हैव टू फाइंड द टेक्निक्स ऑफ योर ओन। रेडीमेड यहां से कुछ नहीं मिलना है आपको। मैं सिर्फ वे बता रही हूं कि गुस्सा कैसे करना, पर आपको आपकी अपनी खुद की टेक्निक्स डेवलप करनी है। गुस्से में कभी भी हाथ मत उठाओ, किसी पे भी, किसी पे भी। पता है, आज अपने फ्रेंड्स पे हाथ उठेगा, कल वो बाप पे भी उठेगा ही, कल आपकी वाइफ पे भी उठेगा, क्योंकि हाथ उठाना एक बार की आदत पड़ जाएगी। गुस्से में कुछ भी हो जाए, गाली मत बको, क्योंकि एक बार मुंह से गलत शब्द निकला फिर आदत में आ जाएगा। स्कूल में थे तब गाली नहीं बोलते थे, पता है? कॉलेज में आने के बाद कितनी गालियां मुंह पे आती है। गाली से ही बात शुरू होती होगी शायद। बेटा, आप हम लोग कोई आसमान से नहीं टपके, आप में से ही आए हैं, आप ही के जैसे जिंदगी जी के ही निकले हैं। 2 चीजें अपने लिए खुद की एक रूल बुक बनाओ, एक डायरी बनाओ, एंड मस्ट हैव डायरी। आज मैं आई एम 50 years old, मैं 50 साल की हूँ। 27 years मेरी साध्वी जीवन का अनुभव है। मैं आज भी मेरी डायरी मेंटेन करती हूँ। मैं आज भी लिखती हूँ कल मुझे क्या करना है। मैं आज भी अपने लिए रूल बुक बनाती हूँ कि मुझे इस चीज को कैसे हैंडल करना है। हर लाइफ को एवरीडे चैलेंज आती है। ऐसा नहीं है कि साधु का जीवन बहुत सीधा स्मूथ रेड कारपेट बिछाया हुआ है। किसी का जीवन नहीं है ऐसा सिंपल।
और ना कभी होने वाला है, उन आशाओं में मत जियो, ड्रीम वर्ल्ड में मत जियो। पता है कार्टून आपने तो शायद नहीं देखा होगा, आपकी जनरेशन पैदा भी नहीं होगी थी, एलिस इन वंडरलैंड, बट यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। व्हाट इज द वंडरलैंड? रियल वर्ल्ड नहीं है वो, यू आर लिविंग इन अ वंडरलैंड। फैक्ट इज कि कभी किसी की लाइफ स्मूथ नहीं होती है, ना कभी होगी, बट यू मस्ट हैव योर रूल बुक। उसमें फर्स्ट रूल ये लिखो और अपनी टेक्निक खुद डेवलप करो कि आप गुस्से को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। कभी गाली नहीं बोलोगे, कुछ चीजें तो अपने लिए हैं, कभी किसी पे हाथ नहीं उठाओगे। मोस्ट ऑफ ऐसा होता है, आई थिंक वी आर ब्लेस्ड चाइल्ड, कि आई एम बेस्ट चाइल्ड, ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि मेरी दीदी ने, कभी हम लोगों ने अपने माँ बाप की कभी डांट भी नहीं सुनी। ऐसा नहीं था कि हम अच्छे बच्चे थे, हमने मस्ती नहीं की, बट उन्होंने कभी हमें डांटा नहीं, हमने ऊंची आवाज नहीं सुनी माँ बाप की। और शायद यही कारण है कि हम आज भी ऊंची आवाज में बोलते हैं ना, तो मुझे तो अंदर से ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है कभी कभी, जब सामने वाला आपकी बात ना सुने। झूठ सच को ऊंची आवाज से दबाता है और सच हमेशा चुप रह जाता है, क्योंकि झूठ ने आवाज ऊंची की। मैं थोड़ा उल्टी खोपड़ी की हूँ। झूठ अगर ऊंची आवाज में बोलेगा तो मैं उसे 4 गुनी ऊंची आवाज में बोलूंगी, क्योंकि मैं सच हूं, मैं नहीं दब सकती। तो ऊंची आवाज से बोलती हूँ तो मुझे ना यहाँ पे पल्पिटेशन शुरू हो जाते हैं, बिकॉज मैंने कभी सुनी ही नहीं। शायद हो सकता है आपके पेरेंट्स ने बच्चे में आपको मारा भी हो, इसलिए आपके लिए अंदर का गुस्सा किसी और को मारने के लिए तैयार होता है। बट जो गलती आपकी पेरेंट्स ने की, वो गलती करने का अधिकार क्या आपको है? अगर आप अपने पेरेंट्स को गलत मानते हो तो क्या आप गलत नहीं हो? बताओ मुझे, मेरा आपसे सवाल है। हम हमेशा माँ बाप को कोसते कि उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, बट आपकी जिंदगी तो आपकी जिम्मेदारी थी। आपने आपकी जिंदगी से साथ क्या किया, ये कभी आपने कभी सोचा? या वो भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है? आपके फेलियर के लिए पेरेंट्स को या समाज को एक्सक्यूज बना के आप यूज कर रहे हो। यू हैव टू फेस योर सेल्फ। लाइफ आपकी है, फेलियर आपका है, नो एक्सक्यूज फॉर दिस। तब आपका ईगो, आपका जो अंदर का ईगो है ना, द सेकेंड पॉइंट, ईगो। क्या हुआ? दोस्त, माँ बाप अच्छे नहीं लगते थे, सारी जिंदगी माँ बाप को कोसा, कुछ दोस्तों को कोसा, उसने धोखा दिया। धोखा देने वाला खराब है या धोखा खाने वाला खराब है? धोखा देने वाला अच्छा इंसान है या धोखा खाने वाला अच्छा इंसान है? कंफ्यूजन है। इन माय ओपिनियन धोखा खाने वाला बुरा इंसान है, बिकॉज वो इंसान ने सामने वाले को अलाउ किया धोखा देने के लिए। तुम उतना अलर्ट नहीं थे इसलिए धोखा खाया। सामने वाले की बातों में तुमने विश्वास किया, उसने नहीं कहा था मेरे पे भरोसा करो। भरोसा किसने किया? तो भरोसा जिसने किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो गलत कौन? बस ये सच को देखना आपको शुरू करना है। हम कभी हमेशा माँ बाप को कोसते हैं, माँ बाप ने ये नहीं किया, माँ बाप ने वो नहीं किया। हमारे पेरेंट्स तो पढ़े लिखे भी नहीं थे। माय फादर वाज 8th स्टैंडर्ड पास और मेरी मॉम सिर्फ 5th तक पढ़ी है, वो भी राजस्थान के छोटे से गांव में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। हम उन्हीं के बच्चे हैं। आई एम फ्रॉम गुजराती मीडियम। आपको लगता है आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप मराठी मीडियम से पढ़ के आए हो, माँ बाप ने आपको इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाया। अभी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आते हैं। इवन मुझे सुनने के बाद आपको ये समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली आई एम फ्रॉम गुजराती मीडियम। सही है? किस मीडियम से आप पढ़ के आते हो, किस बैकग्राउंड से आप आते हो, आपके पेरेंट्स, आपकी परवरिश, आपका कल्चर क्या था, आपके आसपास के सर्कमस्टेंसेस क्या थे, वो सब सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं।
हमारी फेलियर को ढकने के लिए हम मुखौटे ओढ़ते हैं, हम अपना फेलियर किसी और पे सिर पे डालने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और खुद के साथ छलावा करते हैं, खुद को ही धोखा करते हैं। वी आर डिसीविंग आवरसेल्फ ओनली, ये कहते हुए मेरे कारण नहीं, इनके कारण मेरे साथ कुछ गलत हुआ। Then we are actually protecting our ego, और यही ईगो हमें मार डालता है। सही, आपका ईगो एक ही प्रॉब्लम है, ईगो से कुछ तकलीफ नहीं होती। ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, बट ईगो ज्यादातर सेल्फ रिस्पेक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ईगो के कारण आपको आपकी मिस्टेक्स दिखती नहीं है, और लाइफ में जो गलती आप बार बार करते हो, हर फेलियर के जिम्मेदार आपका ईगो है, क्योंकि आपने अपनी गलतियां कभी देखी ही नहीं, देख पाए ही नहीं, इसलिए कभी आपने खुद पे काम किया ही नहीं, और वो गलतियां ऐसी की ऐसी रह गई। आई थिंक कौन सी इंजीनियरिंग है, सब स्टूडेंट फ्रॉम इंजीनियरिंग, फार्मेसी के भी हैं, पॉलिटेक्निक के भी हैं, और दूसरा कोई सिविल वाला भी है क्या? चलो सिविल की बात करते हैं। फाउंडेशन में मैंने एक गलती कर दी और इमारत बार बार गिर रही है, और मैं सिर्फ उन दीवारों पे काम कर रही हूँ जो गिर रही है। क्या सही में वो दीवार और इमारत ठीक होगी कभी? ये कितना सही पता है आपको? लाइफ के लिए क्यों नहीं पता है कि फाउंडेशन में गड़बड़ी हुई है? वी आर डिसीविंग आवरसेल्फ। मैंने आपकी लाइफ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं है। जिस दिन आपकी रूल बुक में लिखो और डेली सेंटेंस को पढ़ो, माई लाइफ इज ओनली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई और नहीं है रिस्पॉन्सिबल आपकी लाइफ के अच्छे बुरे, आपकी हैप्पीनेस, आपके सॉरोज, एवरीथिंग के लिए सिर्फ और आप ही जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार नहीं है। हम हमेशा किसी और को ढूंढते हैं कि वो जिम्मेदारी उठाए, सही है? क्यों नहीं उठाते अपनी? हम डरपोक लोग हैं, हम खुद से डरते हैं, अपनी वीकनेसेस से डरते हैं। द डार्क साइड ऑफ अस, कि हम डरपोक हैं। जिस दिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना शुरू कर दोगे, यू विल बी अ रियल फाइटर, और तब आपके अंदर एक हैप्पीनेस आएगी। आई एम 50 years old, मेरी एज सुन के कुछ बच्चों को शॉक लगा था, आई थिंक सो, एम आई राइट? इसका कारण था आई एम रिस्पेक्टिंग माई सेल्फ। मुझे पता है मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, कैसी हूँ, कहाँ नहीं हूँ, क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। आप सबको पिज्जा पसंद है? बर्गर, कोक, सॉफ्ट ड्रिंक्स में से कुछ तो पसंद होगा। बाजरे की रोटी किसको, सबको पसंद है, because from your background you are really blessed। पता है आज मैक्सिमम यूथ को ये सारी चीजें पसंद है। क्यों पसंद है? आप सबकी यहाँ बैठे सबकी कोई ना कोई वेजेस फेवरेट होगी, अनफेवरेट होगी, कोई पसंद होगी, ना पसंद होगी, सही है ना? बिकॉज आपको एक्चुअल टेस्ट उसका पसंद है, ना पसंद है। बट पिज्जा खाने के बाद हर कोई बोलता है इट्स गुड। व्हाई इट्स गुड? क्या था उसमें, स्वाद कैसा था उसका? Now I'm telling you, मार्केटिंग, यहाँ पे मार्केटिंग का कोई बच्चा नहीं होगा तो शायद समझ जाएगा। मार्केटिंग, अब जब भी स्क्रीन देखते हो, वो खाने के बाद बोलते हो वाओ डिलिशियस। एवरी टाइम जब भी पिज्जा देखते हो, वहां पे लिखा रहता है, सुनते हो, हर चीज से आपके दिमाग में इंपोज किया जाता है कि इट इज डिलिशियस, तो आपको उसका रियल स्वाद कभी पता ही नहीं चलता है। तो आपके टेस्ट बड्स और साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं टेम्पर हुए हैं। इसीलिए जब भी खाते हो बर्गर, पिज्जा या ऐसी बाहर की जो भी चीजें जिसकी मार्केटिंग हुई है, वो आपको हमेशा डिलिशियस और अच्छी ही लगती है। कभी नहीं कहते कि ये अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि आपके टेस्ट बड्स आर टेम्पर्ड विथ योर साइकोलॉजी। This is the funda of my marketing.
लेकिन जब आपकी सब्जियां जो पसंद नापसंद है, उसके लिए आपका टेस्ट बड आपने डेवलप किया है। आपकी पसंद नापसंद आपकी ओरिजिनल है। दिस इज यू। मैं यही कहती हूँ कि जब दुनिया में आप जाते हो तो डोंट लेट देम प्ले विथ योर माइंड, यू आर अलाइन देम। आपके फ्रेंड्स, आपके सर्कल्स, आपके सर्कमस्टांसेस, कोई भी सोसाइटी, वो आपके दिमाग के साथ ऐसे ही खेलते हैं और उसमें वो इंसान डालते हैं जो आप नहीं हो। वो पसंद नापसंद डालते हैं जो आपकी नहीं है, कोई और की है, जो आपने अडॉप्ट कर ली है। आप अपनी पसंद अपनी नापसंद तभी जान पाओगे जब आप खुद रोज लिखो, रोज उस सेंटेंस को लिखो या पढ़ो, माई लाइफ इज ओनली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चीज जिस दिन आ गई, आपके अंदर ईगो नहीं, एटीट्यूड डेवलप होगा। ईगो जरूर नहीं चाहिए, पर एटीट्यूड चाहिए। विदाउट एटीट्यूड देयर इज नो लाइफ। एटीट्यूड को आप सेल्फ रिस्पेक्ट ही कह सकते हो। एटीट्यूड का एक्चुअल शब्दकोश डिक्शनरी में मीनिंग कुछ और है, बट नाउ हमारी बोलचाल में एटीट्यूड इज बिकम लाइक अ सेल्फ रिस्पेक्ट। एटीट्यूड डेवलप करो, एंड दैट्स कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। सो टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको लिखना है तो सेकंड पॉइंट जरूर मेरा लिखिएगा, और हमेशा आपकी हर नोटबुक में मेरी कुछ पोएम्स बहुत पसंद की है, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर की एकला चालो रे, आई लव दैट पोएम। और दूसरा गुजराती में एक वेणी भाई पुरोहित है, बहुत सुंदर कवि हो गए, फ्रीडम फाइटर भी रहे। उनकी 2 कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उसमें से एक कविता मुझे हमेशा, में गुजराती में है लेकिन मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके जरूर बताऊंगी। मेरी हर वो बुक जो मेरे करीब है, जो मेरे लिए बहुत सारी बुकें मैंने पढ़ी है, लिखी है, लेकिन मेरी खुद की कुछ डायरीज के शुरुआत की 3 पेजों पे ये कविताएं मैं लिख के रखती हूँ, क्योंकि जब भी खोलूं पहले मैं उसको पढ़ूं। उसमें से एक कविता है, લીમડા હેઠે ખાટલા ઢાળી સૌ સૂતા હોય એવું કાં લાગે। ગામને પાદરે લીમડા હેઠે ખાટલા ઢાળી સૌ सूता હોય એવું કાં लागे। इसका मतलब है गांव के जो बीच का सेंटर होता है, उसमें नीम के पेड़ के नीचे खटिया डाल के सब हर कोई सोता हुआ क्यों लगता है। આપણામાંથી कोई तो जागे, हम में से कोई तो उठे। ये हमेशा मैं जो भी मेरी डायरी है उसके पीछे आगे पहले पेज पे मैं लिखती हूँ। आज भी मैं रोज पढ़ती हूँ, इसलिए मैं कभी सोई नहीं। खुद की हर बुक के ऊपर आप लिखो, माई लाइफ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेली पढ़ो। आपको लगेगा रोज पढ़ने से क्या होगा, लेकिन रोज पढ़ने से कहीं ना कहीं यू विल डेवलप एटीट्यूड, सेल्फ रिस्पेक्ट। कब कहाँ कैसे काम आएगा उसकी चिंता आप मत करो, आप सिर्फ कर्म करो जो अभी जरूरत है। कृष्ण ने इसलिए तो कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म सिर्फ तुम्हारा अधिकार क्षेत्र में है, तुम्हें क्या करना है वो सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, इसके आगे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तो उसके बारे में मत सोचो। तो सेकंड चीज मैं आपको जरूर कहूंगी कि उस बच्चे की जो गलती थी, दैट इज द ईगो। उसने बहुत कुछ अच्छी चीजें खो दी, बहुत सारी चीजें थी, वो खुद को नहीं समझ पाया। एंड द थर्ड वन, जब कॉलेज में एंट्री की तब क्या हुआ, आप सब लोगों का, इवन हम लोगों का भी हुआ है, यहाँ बैठे आपके सारे डायरेक्टर्स का भी होगा। फर्स्ट क्रश कौन सी एज में होता है? What's wrong in that? We are a human being. It's normal emotions are there. Why are you so laughing? दुनिया में शादी होती तो क्या पाप है शादी करना? जोक है क्या? ये बहुत पवित्र रिश्ता है, इसके कैसे मजाक कर सकते हो? Why are you laughing? Why are you ashamed of it? Is the love is a ashamed feeling? Love is an emotion. We should be ashamed of it. And why are you laughing? It's quite normal emotion होता है। फर्स्ट क्रश कौन सी एज में होता है? आई थिंक 7th 8th में आपका फर्स्ट क्रश हो गया था, मेरा भी हुआ था। भाई मैं नॉर्मल इंसान ही हूँ, रोबोट तो नहीं हूँ कि मेरे में इमोशंस नहीं होंगे। एंड दैट्स रियली अ गुड फीलिंग ऑफ इट। इसने हमें जिंदा बनाया, बट उसी ने हमें डिस्ट्रैक्ट भी किया। यहाँ गलती हो गई। इमोशंस जिस पे आपका कंट्रोल ना हो, इमोशंस जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे, इमोशंस जो आपका गोल सेट ना होने दे। बट मैं डिस्ट्रैक्ट इसलिए नहीं हुई बिकॉज 7th में मेरा फर्स्ट क्रश हुआ,
नहीं द सेम एज। मेरे 8th में फर्स्ट क्रश हुआ और 8th में मुझे मेरी लाइफ का गोल मिला। तो फाइनली मेरा क्रश सेकेंडरी चला गया, मेरा करियर प्रायोरिटी पे आ गया। हर चीज होना ही चाहिए, बट यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटी। इसलिए आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। लड़के की एवरेज करियर क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। फिजिकल डिजायर्स आर नॉर्मल, वी आर अ ह्यूमन बीइंग। एवरी मेल एंड फीमेल की अपनी एक एज में, सर्टेन एज में कुछ फिजिकल डिजायर्स होगी, एंड इट्स क्वाइट नॉर्मल। वी आर नॉट एबनॉर्मल पीपल और वी आर नॉट अ रोबोट। बट सोसाइटी, समाज, पेरेंट्स, इन लोगों ने इन सब चीजों को कहीं ना कहीं एक पाप के रूप में, इवन हम साधुओं ने तो और ज्यादा नुकसान किया है समाज के साथ। हमने उसको एक पाप, गलत रास्ता, गलत चीजें बताई है, जिसकी वजह से आपका अट्रैक्शन उसकी तरफ इतना बढ़ा कि आपकी स्टडीज कॉम्प्रोमाइज होने लगी। है मैं राइट और रॉन्ग? दुनिया में कोई ऐसा साधु नहीं मिलेगा जो आपको इस तरह से कहेगा। ये पाप नहीं है, कुदरत का सनातन नियम है। बट आप उससे इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हो, यू आर ड्रिवन बाय दैट डिजायर्स, कि आपका लाइफ, आपका करियर कहीं ना कहीं किसी एक इंसान में, आपके फिजिकल डिजायर्स में स्टक हो गया। एंड द डिस्ट्रैक्शन, आपके मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीजें हैं। मोबाइल इज नॉट अ डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल में आप जो देखते हो, जो आपके इमोशंस है, देता वो डिस्ट्रैक्शन है। फॉर मी मोबाइल इज रियली, मेरे लिए तो मोबाइल मेरी दुनिया है। सही में मेरी दुनिया है कि मैंने पूरी रिसर्च, मेरा इतना नॉलेज मैंने सिर्फ वहीं से गेन किया है। मुझे कोई भी आर्टिकल चाहिए, मैं कहा, मुझे तो कभी अफसोस होता है कि मैं इस एरा में क्यों पैदा नहीं हुई। बिकॉज व्हेन आई वाज 8th स्टैंडर्ड में थी, आई डिसाइडेड टू बी अ साइंटिस्ट। मेरे साइंस के सर ने, बिकॉज तभी था हम लोगों को बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 3 अलग हो गए थे। तो बायोलॉजी में उन्होंने माइक्रोबायो के लिए बोला। तो माइक्रोबायो में सब्जेक्ट बताए कि क्या क्या होता है, डीएनए होता है, ये स्टडीज होती है। तो मैंने बोला व्हाट इज डीएनए? तो उन्होंने समझाया। मैंने उनको पूछा था, नलिन ताता सर थे, मैंने उनको पूछा व्हाट इज डीएनए? तो उन्होंने हमको समझाया क्या होता है डीएनए। एंड फिर डीएनए में उन्होंने एक शब्द बोला कि हम लोगों की जेनेटिकल बीमारियां, जेनेटिकल इंटेलिजेंस, सब डीएनए टू डीएनए ट्रांसफर होता है। तो मैं फादर को जेनेटिकल डायबिटिक है, तो उनकी मेरी ग्रैंड माँ को भी था, मेरे ग्रैंड फादर को भी था, तो हम लोगों को भी हो सकने का चांसेस थे। तो मेरे दिमाग में था कि हाँ डायबिटिक, तो ये बीमारियां, वंश परंपरागत बीमारियां जो हैं, उसके लिए कोई इलाज नहीं है। हमारे पास ज़्यादा साधन नहीं थे, स्कूल के पास उतनी अच्छी लाइब्रेरीज नहीं थी, हमारे पास बुक्स अवेलेबल उतना नहीं होता था। फिर भी जहाँ जहाँ जो भी मिलता था मैं पढ़ती रहती थी। डीएनए के सब्जेक्ट में कहीं कुछ भी मिल जाए, स्कूल की लाइब्रेरी में, यहाँ वहाँ। तब मैं आज अफसोस करती हूँ कि अगर शायद मैं इस एरा में पैदा हुई होती और आज मैंने तय किया होता, तो मैं 8th स्टैंडर्ड में जितना एफर्ट मैंने उन नॉलेज को लिए किया, उससे ज्यादा कम एफर्ट में मैं बहुत ज्यादा नॉलेज गेन कर सकती थी। मैं राइट और रॉन्ग? आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? एवरी इंफॉर्मेशन, आपको पता है इसमें से कितने बच्चे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? नन, 1 2, हार्डली 2 ओनली। न्यूज़पेपर तो होता है ना, पढ़ते हो? पढ़ते हो? मोबाइल पे भी अवेलेबल है, पढ़ते हो? हम लोगों के घर में कभी कभी होता है कि कुछ आदतें आपके पेरेंट फोर्सफुली आप पे डालते हैं, आपका इंटरेस्ट न हो, लेकिन आप पे फोर्सफुली अगर कोई यूनिवर्सिटी, आपकी ये इंस्टीट्यूशन कोई एक लॉ बना दे, सबसे पहले आप रिबेलियन बन के खड़े हो जाओगे, सोचे समझे बिना इससे मेरा फायदा होगा कि नुकसान होगा। एम आई राइट? अगर मैं कह दूं कि आज के बाद से यहाँ कंपलसरी, जितने स्टूडेंट को कंपलसरी न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्या होगा? क्या करोगे? हमारी सिलेबस कंप्लीट करे, इतने सारे ये पढ़े और न्यूज़पेपर भी पढ़े, बस हमको तो हम पे बोझा ही डालते जाओ। और कुछ फिल्में बन गई, उन्हें तो और आप स्टूडेंट को पागल बना दिया। 3 इडियट्स, ऐसी फिल्में कभी जिंदगी में देखना मत, सही में इडियट फिल्म है, सही में इडियट फिल्म है।
12वीं पास का कौन सा आया था वही है। इडियट फिल्म है जिसने स्टूडेंट के अंदर की इंटेलिजेंस को खत्म कर दिया और आपको सिंपैथी सीकर बना दिया। अरे यार, नौजवान बच्चा है, वो प्रेशर नहीं झेल पाएगा, टूट जाएगा प्रेशर में। आज प्रेशर नहीं झेलोगे तो कब झेलोगे? क्या दुनिया आपके लिए शांति से रेड कारपेट बिछा के जैसा आप कहोगे वैसा चलने वाली है? इसीलिए आज 30-40s में सुसाइड बढ़ रही है। क्यों? ऐसी इडियट फिल्म्स के कारण आपके दिमाग में बैठ गया है यू शुड बी पैम्पर्ड। पहले के बच्चों को मार पड़ती थी लेकिन वो लोग सुसाइड नहीं करते थे। मेरा तो एक फ्रेंड फेलियर भी था, मतलब फैमिली फ्रेंड था हमारा, इनके साथ फेल हुआ, मेरी बीच वाली सिस्टर के साथ पढ़ा, फिर मेरे साथ उसने 10th पास की, तब भी उसने सुसाइड नहीं की। और जब पास हो गया तो मुझे लगा अरे बाप रे, तू पास हो गया तो क्या, फैमिली के फ्रेंड थे ना, तू पास हो गया साथ में तेरी फैमिली के साथ मैं भी पास हो गया। क्या है, क्यों आपके दिमाग में ये भूत बैठा हुआ है कि आपको हर कोई पैम्पर करना चाहिए? कहाँ के महाराजा हो आप? बताओ, कहाँ के महाराजा हो? महाराजा बनना तो और मुश्किल है, कॉमन मैन की लाइफ और अच्छी है। तो आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन, आपके दिमाग के अंदर के ये जो फितूर है ना, रिबेलियन, हर चीज को सोचे समझे बिना, सिर्फ क्योंकि हम पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए, हमें कोई कुछ कहना नहीं चाहिए, ये जो सारी चीजें आपके अंदर है ये आपको आगे बढ़ने से रोकती है, आपको खुद को मिलाने से रोकती है। आप कभी खुद को देख ही नहीं पाते हो। आपको कुछ तो बनना है ना। आपकी जो रूल बुक है ना, उसमें 3rd पेज पे ये लिखना, 5 साल बाद मैं खुद लिखती हूँ, मेरी डायरी में ये सारी चीजें, मैं वही चीजें बोल रही हूँ जो मेरे जीवन में मैंने अप्लाई किया है। 5 साल बाद मैं खुद को कैसा देखना चाहती हूँ, और मैंने आज तक मैंने जैसा अपने को देखना चाहा वैसा मैंने अचीव किया। मैं जब रिसर्च करी थी, मेरी रिसर्च लास्ट स्टेज में थी, तो मेरा मन था कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, रिनाउंड यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर होना चाहिए। तो माय ड्रीम, और मैंने लिखा इतने साल में मैं उस यूनिवर्सिटी के स्टेज पे खड़े होकर लेक्चर दूंगी, और मैंने किया। जैन साहब भी कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने नहीं गई, मैंने अपना कोर्स डिजाइन करके मैंने पढ़ाया, मैंने जो लिखा मैंने खुद को चैलेंज की, और मैंने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया। आप अपनी स्ट्रेंथ को लिमिटाइज करते हो ज्यादा पैम्परिंग करके, खुद को पैम्पर मत करो। इंसानी दिमाग की कैपेबिलिटी इतनी है कि यू कैन अनलॉक। आपकी मेमोरी कितनी है? एक्सट्रीम है, यू हैव लिमिटाइज इट। हम लोग स्कूल में थे तब मैं इतनी ज्यादा जीनियस नहीं थी, मैंने खुद पे काम किया, मैंने खुद को रोज अपने आप को एक चैलेंज दी, और उस चैलेंज को मैंने ही पूरा किया, तब जाके मैं वो बनी जो मैं हूं। कभी खुद को चैलेंज किया? तो पहले अपने इसमें लिखो कि आप 5 साल बाद क्या बनना है। आप वैसे ही रहना चाहते हो जैसे आज हो? खुद के लिए कभी सोचा कि आप 5 साल बाद कहाँ रहना चाहते हो और कैसा बनना चाहते हो? और आपको सिर्फ लिखने से नहीं, सपने तो बहुत कुछ देखते हैं, चिल्ली की तरह। एक गाय आएगी, बोली भैंस आएगी, ना दूध आएगा, ना छाछ आएगा, ना घी आएगी, ना बीवी आएगी, ना बच्चे आएगा, और हाथ में एक दूध का ग्लास ही था, वो भी सपने में फूट गया। यही कहानी आप सबको पता है। सपने देखो तो उसके लिए फिर उस रूल बुक में ये लिखो कि इसको पूरा करने का आपका रास्ता क्या होगा, आप क्या करोगे वो बनने के लिए, वो भी लिखो, रोज पढ़ो, खुद की डायरी जरूर बनाओ। उसके बिना नहीं होगा। आपको क्या लगता है हर सक्सेसफुल इंसान जब सक्सेसफुल हो जाता है तब अपनी सक्सेस की कहानियां आपके सामने रखता है और यही सारी टेक्निक लगता है? आपको लगता है कि हर सक्सेसफुल इंसान इसी की बातें करता है? नो, वो जिस रास्ते से चला है वही रास्ता आपको दिखाता है। अगर आपको वहां पहुंचना है, मैं नहीं कहती मेरी सक्सेस, मेरा अचीवमेंट या मेरा अकम्प्लिशमेंट आपका अकम्प्लिशमेंट होगा, लेकिन आपको आपका अकम्प्लिशमेंट तो ढूंढना पड़ेगा ना कि वेयर हाउ यू वांट टू बिकम, नॉट हु यू वांट टू बिकम।
कुक आप तो हो ही, क्या बनोगे? तो ऊपर से 2 सींग उगा लोगे या पंख लगा लोगे, आप जो हो वही रहने वाले हो, बट कैसे बनोगे आप? हाउ? कैसे दिखोगे, कैसे रहोगे, कैसे बोलोगे? आपकी बोल चाल, आदतें एनी मोमेंट चेंज हो सकती है, इन एनी एज। बस आप खुद को चैलेंज करो, तो कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, खुद को चैलेंज करो और अपनी सारी बाउंड्रीज को एक बार खत्म कर दो। डिस्ट्रैक्शन के बाद ये चीजें बहुत जरूरी है, और इसी कारण यू कैन ओवरकम योर प्रोक्रेस्टिनेशन। आलस, आज नहीं कल करेंगे, होता है ना? मूवी आती है तब तो नहीं बोलते आज नहीं कल देखेंगे। गुस्सा आता है तब तो नहीं बोलते आज नहीं कल करेंगे। किसी को कुछ सुनाना हो तो नहीं बोलते आज नहीं कल करेंगे। सोना हो तो नहीं बोलते कि आज नहीं कल करेंगे। खुद के लिए ही बोलते आज नहीं कल करेंगे। सिंपल है। मैं आपके पास एक सीक्रेट शेयर करना चाहूंगी। इट्स अ यूनिवर्सल सीक्रेट। क्यों कुछ ही इंसान है जो सक्सेसफुल होते हैं? हर कोई सक्सेसफुल क्यों नहीं होता? अगर आपके लिए सक्सेस इज वन काइंड ऑफ अचीवमेंट होता है तो हर कोई वो अचीवमेंट तक क्यों नहीं पहुंच सकता? व्हाई? सिंपल। मैं बहुत ये सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिस पे मैं चली हूँ, जिसको मैंने ढूंढा है। हर उस इंसान ने ढूंढा होगा जिसने अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं पहुंचाया है। यूनिवर्स में आपकी चॉइस जैसे होती है, वो यूनिवर्स वैसे ही काम करता है। सिंपल है, ट्राई करके देखना। मैंने बहुत से बच्चे जो मेरे पास है, मैंने हजारों बच्चों का काउंसलिंग किया है, हजारों की संख्या में। मैंने उन हर बच्चों को कहा है, जो मेरी फैमिली, मेरे फॉलोअर्स, मेरे डिसाइपल्स के बच्चे थे, उनको तो बचपन से मैं ही कहती आई थी, कोई चीज के लिए जब आपको लगता है कि मेरे, आपका मन अंदर से कहता है ना, तो मुंह पे ना ही बोलो, और अंदर से मन करता है हाँ, तो हाँ ही बोलो। लेकिन वो अंदर की आवाज सुनो और ऐसे ही रिएक्ट करो। आप लोग उसी आवाज को दबाते हो। कुछ गलत चीजें हैं, मन बोलता है ना, लेकिन फिर भी लोग क्या कहेंगे? फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स बुरे हो जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे, और उसमें आप अपने आप को घसीटते चले जाते हो। मैं राइट? काफी बच्चों ने किया, और जब किया तो हमेशा अकेले हुए भी, बट विद इन थोड़े से टाइम में उनके पास वो लोग आने लगे जो उनके लायक थे। यूनिवर्स आपके पास दोनों चॉइस भेजती है। सबसे पहले नेगेटिव, क्योंकि डार्कनेस पहला होता है, लाइट उसके बाद आती है। तो अगर आप नेगेटिव चॉइस को एक बार हाँ कर दोगे तो फिर देखना हमेशा उसके बाद कंटिन्यूअस वही की। ये जस्ट लाइक एल्गोरिदम है। जैसे आपके मोबाइल में एल्गोरिदम बनती है ना, वैसे यूनिवर्स में भी एल्गोरिदम बनती है। आप एक गलत चॉइस को हाँ कहोगे तो एल्गोरिदम बनेगी। यूनिवर्सल लॉ है, और वही और वैसी ही चीजें आपके आसपास आना शुरू हो जाएगी। एक चॉइस, आप एक गलत को ना बोलो, एक दिन अकेले रहो, फिर देखना दूसरे दिन एल्गोरिदम चेंज होगी, क्योंकि आपकी चॉइस पॉजिटिव की थी, आपके फायदे की थी, तो वैसे ही एल्गोरिदम बनेगी और वैसे ही लोग आपके पास आने लगेंगे। इट्स यू, कोई और नहीं है आपकी जिंदगी बनाने वाला। आप, आपकी जो चॉइसेस है ना, वही आपकी जिंदगी बनाता है। हमने कहीं गलती कर दी अपनी चॉइसेस में, वी चूज समथिंग एल्स जो हम नहीं थे। मन तो अंदर से बोल रहा था मत कर, मत जा, लेकिन फिर भी गए। कितनी बार ऐसा आपने अपनी लाइफ में किया आज तक? मैं आज आपको कहती हूं, उतने हिम्मत वाले बनो कि अगर अंदर से मन ना कहता है तो मुंह पे ना ही हो, बोलने में झिझको मत। क्या हो जाएगा? मैं आपको पूछती हूँ, क्या हो जाएगा? वही आप सवाल खुद को पूछो, क्या हो जाएगा? मैंने ना बोल दी तो क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स नहीं रहेंगे, जाने दो। जो आज मुझे ना समझे, वैसे फ्रेंडों की जरूरत है? जो आपकी रिस्पेक्ट ना करे, उन लोगों की आपकी लाइफ में जरूरत है? पेरेंट्स आपको रिस्पेक्ट नहीं कर सकते,
उन्होंने आपको बनाया है, यू हैव टू शो रिस्पेक्ट। तो वो तो मारेंगे पीटेंगे, उनका हक बनता है। उन्होंने हमें जन्म दिया है, इस पृथ्वी में लाया है, हमको काबिल बनाया है, तो उनका हक बनता है। लेकिन बाकी जो आपकी चॉइस है, बस उसको ध्यान से देखो। कहीं ना कहीं उन चीज़ों के कारण आप लोगों के अंदर एक चीज़ आती है, और वहीं से जो रिग्रेट आपके अंदर आता है, क्योंकि एक ड्युअलिटी क्रिएट होती है आपके अंदर। आपका माइंड डायलेक्टल बनना जाता है। वो क्या होता है कि दो धारा पे आपका माइंड चलता है। एक कहता है यस, बनना कुछ और है, और कहीं ना कहीं चाहते ना चाहते आपकी लाइफ, आपका मन, सोच, विचार बिल्कुल डिफरेंट लाइन पे, ट्रैक पे चल रहे होते हैं। और इसी ड्युअलिटी के अंदर, इसी कॉन्फ्लिक्ट में आपके अंदर का टैलेंट कॉम्प्रोमाइज होता चला जाता है। Am I right? अब आपको आपकी जिंदगी दिखाई दे रही है ना मेरे शब्दों में। वो सारी चीजें, घटनाएं आपकी लाइफ की आपके मन में, यहाँ बैठे हर किसी को वो गलती याद आई होगी। Am I right? तो इसी तरह से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाते हो, एंड देन यू डेवलप प्रोक्रास्टिनेशन। आज नहीं, कल। क्योंकि जब हाँ कहनी थी, ना कह दी, ना कहनी थी, हाँ कह दी, एंड योर माइंड डेवलप दैट काइंड ऑफ के बस अब इन सब से, इस कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को बचाना है, और इसीलिए आपके अंदर डेवलप्ड होता है प्रोक्रास्टिनेशन, आलस। आज नहीं, कल। और फिर वो कल कभी नहीं आता है। कार्तिक की शादी हो गई थी, शिव जी के बच्चे, कार्तिक की शादी हो गई। अब गणपति को लगा मेरी भी शादी हो जाए, भैया बड़े भाई की होगी, मेरा नंबर लगता है, आप लोगों को भी ना बड़े भाई की हो जाए तो फिर अब अपना नंबर लगेगा। बड़ा लड्डू फूटता है मन में। शादी का लड्डू राजेंद्र भैया खाए वो पछता है, न खाए वो भी पछता है, बट मैंने नहीं खाया, मैं नहीं पछताई। आई एम मोर हैप्पी देन इट। मैं तो आज भी सोचती हूँ, मेरा ऐसे एक लेक्चर था इन AKS यूनिवर्सिटी सतना, मोर देन 2000 स्टूडेंट थे। उसमें से एक बच्चे ने मुझे खड़े होकर पूछा, महाराज जी कि मैम आपने शादी क्यों नहीं की? मैंने बोला मैंने बेचारे क्या करूं, मेरे में अंदर इतना प्यार था, बेचारा एक इंसान झेल नहीं पाता, पूरी दुनिया को प्यार करने के लिए मैं साधु बन गई। तो वैसे ही था, कार्तिक की शादी हो गई। अब गणेश जी के मन में भी लड्डू फूटने लगे कि मेरी शादी कब हो। तो शिव जी के पास चले गए, बोले शिव जी मेरी शादी कब होगी? तो गणपति जी ने, शिव जी ने कहा देख आज सही समय नहीं है, तुम कल आना। गणपति जी को लगा ठीक है कल जाएंगे। वो दूसरे दिन चलना, फिर वापस गए, शिव जी को कहा शिव जी मेरी शादी कब होगी? शिव जी ने कहा मैंने कहा ना कल आना। गणेश जी फिर चले गए, दूसरे दिन तीसरे दिन वापस गए, शिव जी को फिर कहा मेरी शादी कब होगी? शिव जी ने कहा मैंने कहा ना कल आना। कल कभी आया नहीं, शिव जी ने कभी गणपति की शादी की नहीं। ठीक है, वो तो उनकी लड़कियां तो मिल गई, पर शिव जी ने नहीं की उनकी शादी, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। जब हम कहते हैं जिस चीज को आपने कल पे टाला, इसका मतलब समझ लेना वो आपकी लाइफ से गायब होना शुरू हो जाएगा। जिस चीज को आप इग्नोर करोगे उसकी डेथ होना शुरू हो जाएगी, whether it is a relation, emotion, health, studies, anything। ये रूल बुक में लिखो कि ignorance it's death। जिस चीज को इग्नोर करना शुरू कर दोगे वो चीज आपकी जिंदगी से वैनिश होती चली जाएगी। तो जिस चीज को संभालना है, जिस चीज को आपको चाहिए, उसको इग्नोर करना बंद कर दो। मैंने आपको सक्सेस के रास्ते तो नहीं बताए, पर मैंने रूल्स बताए जो आपको फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। एंड ऑफ द डे आप खुद को पूछो कि यस आई डिड इट, बस दैट फीलिंग इज सक्सेस। जब आपको खुद को लगे कि यू गेव योर कंप्लीट, वहां आपने कहीं कुछ कमी नहीं की, जब आप खुद को सर्टिफाई कर सको कि यस आई डिड इट, दैट इज द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। आई एम नॉट गोइंग टू से कि सेटिस्फाइड हो जाओ, यस आई हैव दिस थिंग, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बीवी है, बच्चे हैं, हो गया मतलब खत्म हो गया। जिस दिन ये फीलिंग आई, यू आर डेड। लेकिन जिस एवरीडे नाइट सुनते पहले खुद को देख के पूछो रियली डिड इट। रूल बुक में लास्ट लॉ लिखो, रोज रात को खुद को पूछो क्या तुमने सही किया?
रियली यू आर सेटिस्फाइड? रियली यू डिड इट? आज जो तुम्हें करना था वो तुमने किया, आज जो करना था. आई एम नॉट टॉकिंग द लॉन्ग लाइफ बिकॉज वी डोंट हैव अ लाइफ. आपको लोगों को लगता है बहुत लंबी जिंदगी. नो, वी डोंट हैव. फ्यूचर एक मिस्ट्री है. पास्ट इज गॉन, तो व्हाट वी हैव जस्ट टुडे. लाइफ इज जस्ट अ वन डे. लाइफ बहुत लंबी नहीं होती है, सिर्फ एक ही दिन होता है अपने पास, और हमें सिर्फ वो एक ही दिन के में क्या करना उसको सोचना होता है. और एंड ऑफ द डे हमें आपको खुद को देना है कि क्या ये दिन जैसा जीना चाहता था तू वैसे जिया, जो करना चाहता था तूने किया. अगर यस है, सक्सेस इज देयर, और नो है तो फेलियर इज देयर. सिंपल डेफिनेशन ऑफ लाइफ है ये. इसी तरह से आप अपने जीवन में, क्योंकि सक्सेस का मतलब अगर कोई जॉब है, कोई अवार्ड है, अ सर्टेन लाइफस्टाइल है, कोई कार है, कोई घर है, तो आप कभी जिंदगी में हैप्पी नहीं होगे, हैप्पीनेस नहीं जान पाओगे. सब कुछ हो जाने के बाद हमेशा खोए खोए से. मैं आईटी के बच्चों को देखती हूँ और उनको जब देखती हूँ तो मेरी वो 30 के बच्चे 60 के लगते हैं. बाल तो सबके गायब ही हो गए होते हैं. हार्डली किसके बच्चे, आईटी में जाके आईटी में देख लो, हार्डली किसी बच्चे के सिर पे बाल होंगे. जवानी में बेचारे बूढ़े बन जाते हैं. क्यों? जॉब तो मिल गई, लाइफ खो गई. पैसा तो मिल गया, हैप्पीनेस खो गई. तो मैं ये नहीं कहती कि पैसा मत लो, बट पैसे के साथ हैप्पीनेस कैसे रहे उसके लिए आप अपनी लाइफ के रूल बुक्स बनाओ. और आपकी रूल बुक आपकी खुद की हो, खुद के रूल्स बनाओ. और मैंने जो भी टेक्निक दिखाई है, और मैं आई एम श्योर अबाउट इट, बिकॉज अगर उस टेक्निक से चढ़ोगे तो जो हैप्पीनेस, जो ग्लो मेरे चेहरे पे विदाउट एनी कॉस्मेटिक आपके चेहरे पे भी आएगा. एंड दैट इज एक्चुअल सक्सेस. फ्रॉम लास्ट 27 ईयर्स से मैंने अपनी लाइफ, अपनी चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाया है, नॉट अ सिंगल कॉस्मेटिक. वो ग्लो है, एंड दैट इज द एक्चुअल हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ. आप बस वो अचीव करो. मेरा ब्लेसिंग्स भी हैं, आशीर्वाद भी है. और जो मैंने कहा, सक्सेस शब्द याद मत रखो, हमेशा ना एक चीज शब्द याद रखना, दैट इज दिस. हिंदी के कुछ वर्ड्स बहुत पावरफुल है. सफलता का इंग्लिश सक्सेस नहीं है. एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश बहुत कमज़ोर भाषा है, बहुत कमज़ोर, क्योंकि बहुत कम शब्द है उसमें. और समृद्ध है भाषा हमारी संस्कृत. इंग्लिश में सूर्य के लिए कौन सा वर्ड है? सूर्य को क्या कहते हैं? दैट्स इट. In Sanskrit, we have 72 names for words, noun for just sun. 72. तो हम एग्जैक्ट इमोशन के साथ सूर्य को बता सकते हैं. अगर मुझे दिन उगा है तब मुझे सूर्य को यूज करना है, तो मैं सूरज यूज नहीं करूंगी, मैं यूज करूंगी दिनकर. लेकिन दोपहर का धकधकता गर्म सूरज है, तब मैं उसको सूरज नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी मार्तंड. ऐसे अलग अलग इमोशंस के साथ हमारी भाषा बहुत समृद्ध है. मैं किसी भाषा को लेके, भाषा होती है, उनके इमोशंस लिमिटेड शब्दों में भी एक्सप्रेस हो जाते थे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं. इंडियंस आर हम लोग जेनेटिकली इमोशनल लोग हैं. हम प्रैक्टिकल नहीं हो सकते, हम श्रूड नहीं हो सकते, हम रियली बहुत इमोशनल लोग हैं, सेंसिटिव हैं. इसलिए हमारे अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी भावनाएं हमारे अंदर, हमारे कल्चर में आई है. इसलिए मैं कहूँगी कि उस भाषा में आपकी अगर सक्सेस होना हो तो सक्सेस शब्द कभी मत लिखना, सफलता लिखो. फल याद आना चाहिए, फ्रूट. और आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि फ्रूट खा के जो आनंद मिलता है वैसा ही आपको सक्सेस पाके आनंद मिलना चाहिए. बस आपके जीवन में वो आनंद आए. इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग, यू आर वेलकम. व्हाट्स द टाइम नाउ? किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चंस?
अरे 2 जन सवाल कभी नहीं पूछते। आपका नंबर किस में है? समझ में आने वाले में या बिल्कुल ना समझ में आने वाले में? या फिर मुझसे डर रहे हो? मुझसे डर लग रहा है? सही में मुझसे डर लग रहा है? तो फिर पूछो ना। यस, यू आर वेलकम। आपने पहले कहा कि लाइफ बहुत बड़ी है, फिर बाद में कहा कि एक ही दिन की। हाँ, ये मैंने कहा। वेरी गुड, वेरी गुड। तुमने बड़ा बहुत ध्यान से सुना, थैंक यू। मैंने कहा लाइफ बहुत बड़ी है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पूछना है। आई हैव अ मिस्टीरियस वर्ल्ड विथ मी, जिसको हम फ्यूचर कहते हैं, बट वो एक मिस्ट्री है, इसलिए वो बहुत बड़ी है। लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही दिन है, इसलिए कहा कि सिर्फ एक ही दिन है, दैट इज टुडे। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा है, मतलब तुमने बहुत ध्यान से सुना है। मेरा आज इतना जितना भी मैंने बोला सक्सेस हो गया। किसी को और कुछ पूछना है? यू आर वेलकम। सवाल पूछने से मत डरो। प्रोक्रेस्टिनेशन है, कल पूछेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन कल पूछेंगे। कल पूछेंगे, हाँ कल पूछो, कल मैं नहीं रहूंगी। ऐसे कल तो हूँ। कल आपके लिए स्पेशल है। यही स्टूडेंट रहेंगे, कोई और रहेंगे? यही हो ना? तो कल आपके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। किसके जैसी पर्सनालिटी चाहिए? मेरे जैसी? देखो, आई एम रिस्पेक्टिंग माई सेल्फ। मुझे पता है मेरी पर्सनालिटी कैसी है, इसीलिए। या यू आर वेलकम। मैम, आपने बोला एंगर को कैसे कंट्रोल करें, फिर इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें? दैट्स रियली गुड, रियली गुड। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल है। एंगर को कंट्रोल करना तो मैंने पता, इमोशन को कंट्रोल करना मैंने नहीं सीखा, बिकॉज यू कांट कंट्रोल योर इमोशन। जिस दिन इमोशन को कंट्रोल करोगे, आप बीमार होना शुरू हो जाओगे। यू डोंट हैव टू कंट्रोल योर इमोशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट ओनली। इमोशंस वो चीज है, क्योंकि आपके बहुत सारे इमोशंस है, कभी आपको समझ ही नहीं आती है। जैसे मैं, आप सब बच्चे हैं, मैं आपको सवाल पूछती हूँ, जो लड़की आपको पसंद है उसको प्रपोज करने के पहले डर क्यों लगता है? अरे सब अरे बोलो ना, अभी तो खुल के बोलो, सब लड़के ही हो। दो लड़कियां, ठीक है, मैं मुझे भी छोड़ दो। डर क्या है बताओ? कैन यू कंट्रोल दैट इमोशन? ना बोलेगी तो क्या? सही है ना? आपके ऊपर एक गाना भी बनाया, रंगीला फिल्म का है। कौन सा गाना है बताओ? क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है। कुछ समझ में नहीं आता है। हाउ कैन यू कंट्रोल दैट इमोशन? यू हैव टू गो थ्रू इट, बट आपको वहां ही समझना है आपके इमोशन को कि दैट इज द फियर ऑफ रिजेक्शन। अगर वो रिजेक्ट करेगी तो, अब मैं कहूंगी डोंट ट्राई टू कंट्रोल इट, बट उतना समझ लो, अगर रिजेक्ट करेगी तो क्या करना है? खुद को ये सवाल पूछो, क्या उसको फोर्स किया जा सकता है? तो आई हैव टू रिस्पेक्ट हर चॉइस। क्यों? क्योंकि इट्स इमोशन ऑफ लव एंड इट्स रियली वेरी प्योर। सो यू हैव टू लव, रिस्पेक्ट योर इमोशंस कि तुमने प्यार किया है, कोई पाप नहीं किया है। आप वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हो, इसे रिजेक्शन के बाद बच्चे बहुत सारी गलत चीजें कर देते हैं। बीइंग अ वुमन, बीइंग अ गर्ल, मैं आप उस बच्चों के मतलब उसमें से भी मैं गुजरी हूँ। रिजेक्शन के बाद लड़कियों को जिस तरह से परेशान किया जाता है, क्या मैं ये कहती हूँ वो पुरुष के रूप में शोभा देता है आपके समाज को? वो क्यों हुआ? मैं ये नहीं कहती शोभा देता गलत है या सही है, वो क्यों हुआ, उस क्यों पे मैं काम करूंगी। क्योंकि उस इमोशन को आप समझ नहीं पाएंगे। इट्स अ लव, और वो बहुत पवित्र भावना है। उस पवित्र भावना की आपने रिस्पेक्ट नहीं की, आपने खुद के इमोशन की रिस्पेक्ट नहीं की, इसके लिए आपने गलत रास्ता चुना। अगर आपने सही किया होता तो क्या करते? आप उसकी रिस्पेक्ट करते, और हो सकता है, क्योंकि मेरी खुद की लाइफ में हुआ है। वन ऑफ माई फ्रेंड व्हेन प्रपोज्ड मी, मैंने कहा यार वी आर फ्रेंड्स, मैं नहीं देख सकती। तो उसने 2 दिन लिए पे, ओके फाइन, इट्स मेरे इमोशंस मेरे अपने हैं, विल कंटिन्यू एज अ फ्रेंड। और हम लोग बहुत अच्छी दोस्ती के साथ हम आगे बढ़े। तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? जब आप अपने इमोशन की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो यू डोंट हैव टू कंट्रोल इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट।
आपके इमोशन को समझो और बस उसकी रिस्पेक्ट करो, बहुत हो जाएगा। मैंने ये इसलिए दिया कि वो सबसे अच्छा इमोशन है जो आप इस एज में समझ पाओगे। आगे जाके बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन अगर आज ये प्रॉब्लम को सॉल्व आप कर पाए तो लाइफ लॉन्ग आपको लाइफ में इनबैलेंस नहीं होगा। जैसे आपने आपके घर में इनबैलेंस देखा होगा पापा और मॉम के बीच, कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि कहीं पापा इज नॉट फुलफिलिंग द फैमिली मैटर्स, हमेशा माँ देखती है या माँ कभी नहीं देखती है, पापा देखते हैं। वो उनकी लाइफ में इनबैलेंस क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने इमोशन को नहीं समझा। वो गलती आप नहीं कर पाओगे। इसलिए इमोशंस को सिर्फ समझो, कंट्रोल मत करो। वो कंट्रोल कर भी नहीं सकते क्योंकि आपकी हालत ही ऐसी है ना, क्या करे क्या ना करे। एनी अदर क्वेश्चंस? देन कंक्लूड करें हम लोग? ओके फाइन। फर्स्ट रूल कौन सा था? अब मेरी बारी है। फर्स्ट रूल कौन सा था? लिखा नहीं किसी ने? एंगर, कंट्रोल योर एंगर, मैनिपुलेट योर एंगर। सेकेंड, my life is my responsibility, so you can overcome your ego and develop attitude. Third, yes, procrastination के लिए, distraction के लिए। 5 years goal plan for yourself. 5 साल बाद आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हो? अपने आप को कैसा देखना चाहते हो? क्या देखना चाहते हो? नहीं कि मैं ये जॉब हासिल कर दूंगा, नो, फॉर योर सेल्फ ओनली। आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हो? वेल कॉन्फिडेंट, कि ऐसे ही डम, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, जैसे भी देखना चाहते हो खुद को। एंड फोर्थ, हैबिट्स, जिसको मैंने इनडायरेक्ट वे में आज इसलिए नहीं लिया क्योंकि कल मैं उसको पूरा वे में लेने वाली हूँ, इसलिए इस चीज को मैंने फोर्थ को नहीं कहा। द लास्ट वन इज प्रोक्रास्टिनेशन। कल नहीं आज, कल नहीं आज। एंड यू हैव टू बी थॉटफुल एंड जब भी आप चॉइस लो, चॉइस करो, तब थोड़ा सोचो। और एक रूल मैंने अलग से कहा था, जब आपकी अंदर की आवाज हाँ कहती है तो जबान पे, जब अंदर की आवाज ना कहती हो तो जबान पे। दैट्स इट, सिंपल वे है एंड आई थिंक इट्स इनफ फॉर योर गुड लाइफ। मेरी लाइफ तो इतने रूल्स पे आगे निकल गई और इसी रूल्स पे चलते चलते मैंने बहुत कुछ जान लिया, बहुत दुनिया देख ली और 3.5 लाख किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया है जस्ट इन इंडिया। इसमें 1.5 लाख किलोमीटर पेडेस्ट्रियन ट्रैवल था हमारा। स्टिल अभी भी कुछ रुका नहीं है। तो मैं ये चाहूंगी कि बस जीवन का गोल सेट होने के बाद एंड ऑफ द डे, इफ यू आर हैप्पी देन यू आर सक्सेसफुल, इफ यू आर नॉट हैप्पी देन यू आर फेल्ड। So, happiness is the success. ये हमेशा याद रखना और लिखना, happiness is success. Success is not the achievement. It's the happiness, accomplishment, feeling of accomplishment. बस ऐसे आपके जीवन में आप you're welcome. तो मैम आपने बताया था, वो IT का एग्जांपल दिया था आपने कि पैसा है पर जवानी नहीं है, मतलब सक्सेस मिलने के बाद भी कुछ कमी है ऐसा। हाँ, क्या हुआ? मैं ये नहीं कहती, बेटा थैंक यू बेटा, बहुत सवाल। आईटी में नहीं जाना ऐसा मैं नहीं कह रही, वहां जाओ लेकिन खुद को मत खो दो उसके बीच, जॉब करो। आई थिंक देयर इज अ गुड फिल्म उस पे बनी है, शाहिद कपूर की, जब वी मेट। आपने देखी सबने जब वी मेट? तो उसने क्या, शाहिद कपूर ने उस समय क्या समझा कि मैं जॉब ना करूं, बिजनेस ना संभालूं, या संभालते हुए खुद को भी संभाल लो। आईटी में जाओ, खुद को मत खो दो उस प्रेशर के बीच, उस सक्सेस की दौड़ के बीच। हैप्पीनेस मेरी ना खो जाए,
इनबैलेंस ना हो जाए मेरी लाइफ का बैलेंस ना बिगड़ जाए, बस उसकी टेक केयर करूँ। इसलिए मैं कहा कि एंड ऑफ द डे इफ यू आर हैप्पी, प्रेशर आज हम नहीं कम लेते। मैंने इसलिए कहा कि मैंने 3.5 लाख किलोमीटर किया है, 800 किलोमीटर की ड्राइव की है, हमने एक साथ 12 घंटे नॉन स्टॉप ड्राइव किया है, नॉन स्टॉप। एग्जॉस्ट होती है ना बॉडी, शरीर तो थकता है ना, बट देन ऑल्सो एंड ऑफ द डे आई एम हैप्पी। व्हाई? बिकॉज वो जर्नी के पीछे मेरा कुछ मोटिव था और वो फिनिश हो गया। आई एम हैप्पी, आई एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ दैट जर्नी। मैं आपको पर्सनालिटी, कल इसलिए मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपका जो स्ट्रेस है ना, ये जो आपके दिमाग में है, ये हैप्पीनेस कैसे अचीव करेंगे, बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। हाउ डू बी हैप्पी एवरी डे, कि आपके चेहरे पे ग्लो आए। आप लोग सब में से बहुत यंग हो, सही है ना? आपके चेहरे पे 12 बजी हुई है। योर स्माइल इज नॉट आर्टिफिशियल, मतलब इट्स नॉट नेचुरल, इट्स काइंड ऑफ आर्टिफिशियल। जब मैं बोलती हूँ तब हंसते हो, और मैं ना बोलूँ तब भी हंसती हुई दिखती हूँ। सही है, क्यों? बिकॉज योर आईज आर नॉट स्माइलिंग। आपकी आंखें नहीं हंस रही है, सिर्फ आप हंसी स्माइल कर रहे हो, लिप्स को एक्सपैंड करके स्माइल का पोस्चर दे रहे हो, जस्ट यू आर नॉट स्माइलिंग एक्चुअली। सो दिस इज, मैं आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सिखाने वाली हूँ। तो बहुत सारे सवाल के जवाब आपको कल मिलेंगे। और वो बोलते ना, ओ सीरियल से आप एक डेली शो में आता है ना, कुछ सस्पेंस पे जाके, पॉइंट पे जाके सीरियल को रोक दिया जाता है कि कल कुछ, तो ऐसा ही है कल आपके लिए भी। या टू बी कंटिन्यू। थैंक यू। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे सुना, आपका इतना कीमती समय मुझे दिया, मुझे सुनने के लिए आई एम रियली रियली थैंक यू। As we reach the end of the enlightening session, it is time to express our heartfelt gratitude on behalf of everyone present here. I would like to sincerely thank respected Sadhvi Shri Shashwat Purnaji Marasa for sharing such an inspiring and valuable thoughts on the ideal pathway to success. Your words have truly motivated and guided us. I would also like to thank our Honorable Director, respected HODs, and all the department teachers and all the students for their presence and support in making this session meaningful and successful. Thank you everyone for being a part of this wonderful session. Jai Jinendra, Vatinendra sir. I request everyone to be seated. Thank you.